discuss what is class in Python and how we can define the class, a basic example to run the class, what is attributes, what is properties, and should I say behavior. These all things we have discussed, right? And today we discuss a very important topic that is a self variable जो कि कल हमने यूज़ किया था। तो अभी एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लास लिया था, क्लास टेस्ट कॉलन एफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ and we passed one statement here, class mo class demo. And when I create an object for this class, object is created and I assign this address to a reference variable t. If I run this code, then this statement will be executed. Okay. Now, today we discuss about the self, then we move to the init, right? So what is the self? Self एक वेरिएबल है, जैसा कि आपको पता है कि डेफ इज ए फंक्शन और शुड आई से मेथड, क्योंकि क्लास के अंदर है तो क्या है, मेथड है। तो सेल्फ एक आर्ग्यूमेंट है। आप सभी को याद है कि जब हमने फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था, I have a function, let's suppose, and we are just print name. I passed a name variable here. When I call this function, I pass some value. I pass some value. This value passed to name variable. This function execute and value will be printed. This is the way. The same way, if we see init, init is also a method, just like m method. Init also a method, and self is what? Self is a variable inside this method. Okay, and this self variable is is belong to this reference variable. Self directly connected to this t. Okay, how we can say? Just I'm showing you. Uh, just yeah, I'm explaining. Okay, this is my code. Now what happened internally? What happened internally? Once we once we write this statement internally, a object is created. Agree? That object is directly referred by t. Okay, agree or not? Right? Internally, this self also referred to this object. Okay, internally, this self also referred to this object, means internally who pass the reference, who pass the test object reference to self, internally pvm doing this job. Who is pvm?
पाइथन वर्चुअल मशीन। देखिए हमने क्या किया, वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, we create an object like test. So internally what happen, internally what happened, a id is created, right? And what we are doing, we are assigning this id to a variable। तभी तो हमें पता चल रहा है कि टी बिलोंग कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही अगर हम सेल्फ को प्रिंट कराएं, इसकी आईडी चेक करें और टी की आईडी चेक करें, अगर ये आईडी कॉमन आती है तो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए ये चेक कर लेते हैं एक बार, तो एटलीस्ट हमें ये प्रूव हो जाए कि दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आई एम डूइंग, गोइंग टू डू, आई सेट सेल्फ आईडी। ठीक है, सेल्फ वेरिएबल की आईडी मैं ले रहा हूं, एंड आईडी ऑफ and outside this I'm printing the ID of E. I said reference variable variable ID। ठीक है, ये दोनों run करते हैं जल्दी से। Can you see the IDs are ठीक है। Why it done by the PVM, ये कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, बट दिस T and this self are the pointing to the same object, agree or not? ठीक है, अभी प्रूव हो गया, तो दे आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। वाई? टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है? मेथड है ना, मेथड से और एट्रीब्यूट से। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका रोल नंबर, नाम, क्लास, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। इसके लिए फंक्शनैलिटी क्या होगी? एज ए बीइंग स्कूल, एग्जाम एक फंक्शनैलिटी है इसकी, गेम्स एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी एक्टिविटी एक फंक्शनैलिटी है ना? तो ये सारी एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म कर सकता है? आउटसाइड द क्लास तो टी कर सकता है, आउटसाइड द क्लास। लेकिन क्योंकि टी आउटसाइड द क्लास है, इनसाइड तो ये जाएगा नहीं। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की एक्टिविटीज को इनसाइड द क्लास भी यूज करना है, तो हु इज गोइंग टू डन दीज एक्टिविटीज? सेल्फ वेरिएबल गोइंग टू डू दिस एक्टिविटीज। एग्री? गेटिंग माई पॉइंट, राइट? बिकॉज अगर ये टी इस सेल्फ को बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा? मान लेते हैं इफ आई एम टेकिंग वेरिएबल a इक्वल टू 10, b इक्वल टू a, ठीक है, तो अगर मैं b में कोई चेंजेस कर रहा हूं तो क्या वो a में रिफ्लेक्ट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ a में चेंजेस कर रहा हूं तो b में रिफ्लेक्ट होंगे? नहीं होंगे। भले ही दोनों की वैल्यू यहां पर सेम हो जाएगी, लेकिन चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसी जगह अगर हम एक लिस्ट ले लें, l इक्वल टू 1, 2, if we do L1 equal to L, then what happen? Is both pointing to the same object। L में जो चेंजेस करोगे वो L1 में रिफ्लेक्ट करेंगे, L1 में जो चेंजेस करोगे वो L में रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू, जस्ट वेट। पाइथन भूल गए आप लोग। We have a list 1, 2, 3, 4, 5, it's L1 and I'm doing L1, the next moment I do L2 equal to L1। If I show you the ID of L1, L1 comma ID of L2, प्रूव हो जाएगा।
क्या दोनों सेम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। लेट मी शो। both IDs are same. It means if I do L1 dot append L1 dot append 10,000. If I print if I print L1 comma L2, so both are pointing to the same object, तो वैल्यूज भी दोनों में ऐड हो गई। मैंने L1 में परफॉर्म किया था, वैल्यूज कहाँ पे ऐड हो रही है, दोनों में ऐड, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द same object. So the same reason, this self variable inside the class is mandatory. Thing is that mandatory है। दूसरा, ये जो यहाँ पर हम रेफरेंस वेरिएबल एक बना रहे हैं मैनुअली, ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिटली, यही इंटरनली यहाँ पर हो रहा है। और इसका जो रेफरेंस है, टेस्ट का जो रेफरेंस है, वो किसको दिया जा रहा है, सेल्फ को। वाई? If I want to perform any property or any task inside the class, I can use only self. Outside the class, I can use this t. ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, self belong to the current object. Self belong to the current object. For example, no, no. Now there is a person, or should I say post DM, who is the whole soul for a district, and DM actually a post not belong to any person. ये पर्सन को बिलोंग नहीं कर रही, ये एक पोस्ट है, पर्सन इस पोस्ट को बिलोंग कर। तो आज एक ए पर्सन इस पोस्ट पर है, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, वो उसके रेफरेंस में सारी चीजें होंगी। कल एक बी पर्सन डीएम बनता है, तो अब सारी चीजें किसके लिए रेफर करेंगी, बी पर्सन के लिए। कल एक सी पर्सन डीएम बनता है, तो अब डीएम की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन रेफर करेगा, सी पर्सन। तो ये जो डीएम है ना, ये सेल्फ वेरिएबल है, और ये जो ए बी सी है, दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल लाइक टी। तो टी मेरा आज है, तो टी के लिए सेल्फ बिलोंग करेगा। T1 बना दूंगा तो T1 के लिए सेल्फ बिलोंग करेगा, T2 बना दूंगा तो T2 के लिए सेल्फ बिलोंग करेगा। ठीक है, लेट मी शो यू दिस एग्जांपल वेरी क्लियर। लेट्स सपोज I have one more object, just like a T1, I have one more object T2. So what happened? For T1, for T1, for this statement, मैं यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी दे देता हूँ, लाइक T1, यहाँ पर मैं दे देता हूँ T2, एंड अब आप देखेंगे बच्चों कि जब ये स्टेटमेंट कॉल होगा, पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, सेल्फ किसके लिए काम कर रहा होगा, T1 के लिए, यानी कि T1 का रेफरेंस आईडी और इस सेल्फ का आईडी दोनों का सेम होगा। जब T2 कॉल होगा तो T2 का आईडी और इस सेल्फ का आईडी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इट प्रूव्स दैट कि वो दोनों के लिए अलग अलग वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर ये सेल्फ की आईडी है, T1 के लिए दोनों आईडी सेम है, फिर ये सेल्फ की आईडी है, T2 के लिए दोनों की आईडी सेम है। ठीक है, तो इंटरनली क्या हुआ होगा, इंटरनली ये हुआ होगा कि जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो पहले T1 के लिए एक ऑब्जेक्ट बना, राइट, और T1 इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, तो सेल्फ उस समय पर इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जब तक ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ, काम कम खत्म हुआ, जब ये स्टेटमेंट रन हो गई, ये काम खत्म हो गया, तो ऑब्जेक्ट का काम भी खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही फिर नया ऑब्जेक्ट बना, तुरंत क्या हुआ होगा, मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बना हुआ बनेगा, जिसको हमने रेफर किया है किससे,
T2 से. Now immediately self variable belong to this object. ठीक है. तो जो जैसे ही वर्किंग में आया उसके लिए सेल्फ क्या करने लग जाएगा, बिलोंग करने लग जाएगा या काम करने लग जाएगा. तो उसको हम कहते हैं सेल्फ वर्क फॉर द करंट ऑब्जेक्ट. करंट ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रनिंग में है, जो उस समय रन कर रहा है, ये उसको बिलोंग करेगा हमेशा. कोई डाउट नहीं. ठीक है. मतलब सेट में चेंजेस करेंगे तो वो टी वन में रिफ्लेक्ट या टी टू में रिफ्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल. और फिर टी वन में तो वो डेटा आएगा क्लास में, बिल्कुल. वही रहेगा. तो सेल्फ अगर T1 रन होना है तो उस समय सेल्फ T1 के लिए काम कर रहा है. T2 रन हो रहा है तो सेल्फ उसमें T2 के लिए काम कर रहा है. T1 बिल्कुल सेपरेट है T2 से. ऐसे उसी समय पर सेल्फ काम करेगा T1 के लिए, नेक्स्ट मोमेंट सेल्फ काम करेगा T2. It is just like we have n number of Aadhaar card holders. Agree or not? N number of Aadhaar card holders. Now, how many basic information for every Aadhaar card holder is very basic. सबसे पहले आधार आईडी विच इज मोर इंपोर्टेंट, देन नेम, मे बी डीओपी. ठीक है, मान लेते 3 चीज अभी कंसिडर करते हैं. फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट, फॉर द सेम रिक्वायरमेंट वी हैव. ओके, सेम रिक्वायरमेंट. राइट. नाउ if we create a class for a Aadhaar card, just we create a class, just we create a class Aadhaar card, sorry, and what we do, we create id, we create name, and we create EOP. We have created a model only. Now we can create how many objects from this class? N number of objects. For n number of object, these three things is automatically given to the every object or not? Yes, because these are the property for the object. If we have not the option of the class, then what happened? If 100 people are there, how many times I require these three variables? 100 टाइम्स इंडिविजुअली. यानी कि एक पर्सन को ये बिलोंग कर रहा है, दूसरे पर्सन को ये बिलोंग कर रहा है, और कोई ग्रुप नहीं है. मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे लाइक ID1, ID2. सेम नाम से वेरिएबल तो नहीं हो सकते. ID3. अब आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन एक ही फोल्डर में होगी ना, एक ही प्रोग्राम में होगी पूरी वर्ल्ड, पूरे इंडिया की. उसके लिए अलग अलग फाइल तो बनेंगी नहीं, अलग अलग फाइल बनेंगी तो मिसमैच हो जाएगा डेटा. ठीक है. अब हमने क्या किया, क्लास बना दी और क्लास के अंदर ये सारा काम कर दिया. क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए. ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमने आधार कार्ड आईडी से बना लिए, मान लेते हैं आधार कार्ड आईडी सबकी यूनिक है, वही रेफरेंस वेरिएबल हो गया. आपकी आधार वैल्यू किससे एक्सेस होती है? बाय हेल्प ऑफ आधार आईडी और आइदर योर फिंगरप्रिंट, आइदर योर फेस, सॉरी, आईज रेटिना. लेकिन अभी उतनी टेक्नोलॉजी शॉपकीपर्स के पास एडवांस नहीं है, तो जनरली आधार कार्ड नंबर से उस सारे डेटा को एक्सेस किया जाता है. ठीक है. तो वो आईडी क्या हो गई, वो रेफरेंस वेरिएबल हो गया जिससे सारा डेटा आपका एक्सेस हो रहा है. क्लियर है? कोई डाउट? सेम वे the properties of the object is declared by help of variables. ठीक है. तो इस पे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद चीजें करेंगे. आई हैव ए क्लास, let's suppose employee. I have a function def underscore init underscore colon, and I'm creating some variables self dot id equal to 101,
self dot name equal to self dot salary equal to this is some data. And what is this id name and salary, just we discuss one. And what I'm doing, emp equal to equal to what we create an object. This reference variable have this id, this name and salary. ठीक है. If I do print e dot id comma e dot name comma e dot salary, no, what will be the output we get? मैंने तो e को कभी असाइन ही नहीं किया, ई वेरिएबल को मैंने कोई ये आईडी वेरिएबल वगैरह कुछ दिया नहीं दिया, बट स्टिल दे आर प्रिंटिंग 101 ram and salary 10,000. Why? Because this self belong to e, and we create three variable for which, for this reference variable we created three variable id name and salary. And if I run this code, if I run this code, you can see 101 ram and 10. So internally what happened? Internally what happened? Just wait. A object is created and id equal to some value, name equal to some value, and salary equal to this. So this object also belong by e. So if I access e dot id, this value will be accessed. E dot name, this value will be accessed. E dot salary, because self also belonging to this. तो सेल्फ अभी किसके लिए काम कर रहा है? बिकॉज ई के लिए काम कर रहा है. ठीक है. तो इंटरनली जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इनिट फंक्शन कॉल हुआ. इनिट फंक्शन ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के लिए दीज वैल्यूज असाइन कर दी. ठीक है. हालांकि अभी ये वैल्यू स्टैटिक है, हम इसको मैनुअली चेंज कर पाएंगे. अभी यूजर से इनपुट हम सब ये सब नहीं कर रहे, बहुत बेसिक समझ रहे हैं. तो ये वैल्यूज स्टैटिक है और इन आईडीज के अंदर क्या कर दिया गया, ये वैल्यू क्रिएट कर दी गई. अब इंटरनली आप समझो ऐसे यहाँ पे आधार कार्ड नाम की एक वैल्यू होगी, ई एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, आपसे डेटा लिया, फॉर्म में इनपुट कर दिया, रिकॉर्ड बनता चला गया. अब मुझे राम का डेटा चाहिए, मैंने उसकी आईडी डाली, राम का डेटा वहां से उस ऑब्जेक्ट से रेफरेंस हो गया, एक्सेस हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूं, ई डॉट आई डी, ई डॉट नेम, ई डॉट सैलरी, उसी पर्सन का डेटा आ रहा है ना. एग्री और नॉट? ठीक है. सो द व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ. अभी देखो सेल्फ डॉट आईडी, ये जो आईडी वेरिएबल है ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल. कैसा वेरिएबल है ये? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसको बिलोंग कर रहा है? ऑब्जेक्ट. और दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं हम, जो राइट वर्ड है, इंस्टेंस, आई एन एस टी ए एन सी ई, इंस्टेंस वेरिएबल. क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहा जाता है इन प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? इंस्टेंस. ठीक है. इंस्टेंस, इंस्टेंस. सो जैसे आई सपोज आई सेड आई हैव ए टू, आई हैव ए टू इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर. प्रिंटर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट. आई सेड टू इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर मींस मेरे पास दो प्रिंटर है. ठीक है. तो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट. हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास राइट नाउ? ओनली वन. If the next moment I do how many instance of this object? This class 2. So instance means object. So what IDs directly belong to E, or should I say employee. इंटरनली तो एक ऑब्जेक्ट बना होगा, उसको रेफर कौन कर रहा है? ई रेफर कर रहा है. तो डायरेक्टली किसको रेफर कर रहे हैं? ई को. ठीक है. अगर बच्चों मैं यहाँ पे E1 के लिए भी कॉल करूं, वैल्यू सेम आएंगी या डिफरेंट? सेम आएंगी, क्योंकि अभी
E1 के लिए भी सेल्फ काम कर रहा है और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, स्टैटिक वैल्यूज प्रोवाइड करा रखी है, यानी कि फिक्स वैल्यू दे रखी है, तो अभी दोनों के लिए वैल्यूज कैसे आएंगी, सेम है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वन थिंग इज हियर, this id is called the what, instance variable, is it clear? And outside the class this self is not work. ठीक है, now I required, sir, we have a two different employees and I want two different informations. Okay, and how can we assign the different information to the variables? By help of input. ठीक है, और by passing the argument to the function. So init what is init? Init is a function ना, क्लास init is a function, right? क्लास के अंदर है तो मेथड भी है, right? But the right word for this init is constructor. What is the init? Constructor. Constructor is a special type of methods who create the object and use to initialize values to the object. अगर ये नहीं है, कैन वी इनिशियलाइज एनी वैल्यू टू द एम ई, ये वेरिएबल हम कहाँ बनाएंगे, नहीं बन सकते, बिकॉज दे आर क्रिएटेड इनसाइड द इनिट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, इन जावा देयर आर सम डिफरेंट वे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपने जावा नहीं पढ़ी है तो मैं उसका एग्जांपल नहीं दे रहा, बट कंस्ट्रक्टर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इनिट व्हाट, एक कंस्ट्रक्टर, और यहां पर इस कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा यही रहेगा, वी कैन नॉट चेंज. What about the C++ and Java? Suppose class name is test. Class name is test. Okay. So constructor name is, if class name is student, then constructor name is. So according to the class name, constructor name can be vary in C++ and Java and in .NET. Okay, but in Python there is no different way. There is only the name is underscore underscore init. This name never change. Okay, always constructor name is same. Okay, now one thing. Can we call this function? Init method को call कर पा रहे हैं हम? कैसे भी? तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है. कब कॉल हो रहा है? जब ईएमपी ऑब्जेक्ट बन रहा है. जितनी बार ईएमपी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, उतनी बार ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. तो अगर हमें इस फंक्शन तक वैल्यू पहुंचानी है तो हम आर्ग्यूमेंट भी कहां पास करेंगे? ठीक है, कैसे वो समझते हैं. आई वांट टू पास आईडी. फर्स्ट मेरा वेरिएबल आईडी है, तो मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे, आईडी. तो मैंने पास किया नेम, आई एम पासिंग, and I am passing salary, so I am passing salary. But what happened? How many arguments are there? One. How many arguments I provide here? Three. Internally, this EMP call to this function, na? This is statement called which method? This constructor. So नाम भले ही फिक्स है, यहां पर नाम EMP है, यहां पर init हमेशा रहेगा. ठीक है, लेकिन right now how many arguments it have? One argument. How many arguments I provide? Three arguments. This argument self is only directly in contact with the PVM. We cannot initialize this argument right now. ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं, इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते. Then what we required? We required three more variables to accept these values. Like first variable we have ID, name, and salary. This 101 assigned to Ram, assigned to 10,000, assigned to salary. Now how many arguments are there? 4. Self is always is there. ठीक है, I will prove this कि there are the 4 arguments. Let me show you, just wait. Now this 101, ये जो 101 है किसको असाइन हुआ? आईडी को. तो हम क्या कर सकते हैं, इस 101 की जगह क्या लिख दें?
इस नेम की जगह क्या लिख दे, नेम, और इस सैलरी की जगह क्या लिख दे। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, सर इधर भी आईडी है इधर भी आईडी है, बट इधर जो आईडी है वो है सेल्फ डॉट आईडी, इधर जो नेम है इधर जो नेम है, लेकिन इधर नेम क्या है, सेल्फ डॉट नेम, इधर सैलरी इधर सैलरी, इधर क्या, सेल्फ डॉट सैलरी। इट मींस सेल्फ मतलब दिस आईडी दिखने में सेम है, लेकिन ये किसको बिलोंग करेगी, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगी, और ये आईडी वेरिएबल किसको बिलोंग करेगा, जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम नेम हो, मैं आई ले सकता हूं, बट इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, इट इज नॉट ए रिकमेंडेड, स्टैंडर्ड नहीं है। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि वेरिएबल नेम शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। भाई हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आईडी दे रहे हैं ना, तो इफ आई टेक द वेरिएबल नेम एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, नो, आईडी देना याद रहेगा। और सेल्फ डॉट आईडी का मतलब क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल वाला वेरिएबल है, और आईडी का मतलब क्या होगा, जो वेरिएबल हमने अभी आर्गुमेंट पास किया है उसकी बात होगी। ठीक है, now if I run this, I need to clear this, no, oh sorry, same way now I'm printing that values. Now can we create another object with different data, yes, happily we can do, just I need to pass some different values, just I'm passing 102 um, what I need to do, e1 now ई का डेटा ऑब्जेक्ट अलग बना, E1 के लिए ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, E1 के लिए 101 राम और 1000 असाइन होगा, E2 के लिए 102 श्याम और 9000 असाइन होगा, टू डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट। Now what happened internally, one object is there, another object is there, that is E1, that is, sorry, E1, now this belong to this object, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज क्या साइन हुई हैं, 102, id equal to 102, name equal to Sham, and salary equal to 9000. Okay. Okay. So now we have it two objects. Both two objects have the different memory in the different ID in the memory. This even belong to this memory, and even E belong to this memory, and even belong to this memory. And self is working for the current class object. Okay. So now you can see how can we pass, different values to the different object, then how many times I required to write this code, only once. How many objects I can create by this object, n number of objects, for every object this data will be common to know, yes, id मिलेगी, नेम मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अब यहां पर आप जितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते चले जाओ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो डेटा उसको अवेलेबल हो जाएगा। So that is called the object benefit of object oriented programming system. We cannot do with the procedural या functional programming में हम ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर हमें अगर 1000 एम्प्लॉय बनाने हैं, then ID वेरिएबल हमें 1000 टाइम बनाना पड़ेगा, ID1, ID2 एंड समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, और वो ब्लूप्रिंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं? Now let me show you one more thing related to self. And here I am taking just pass. Why pass? Just to not use of this. I'm taking the name of this class. That's now.
if I do test equal to what happened? This function will be called or not? और बस मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, पर कॉल तो करेगा. बेटर अंडरस्टैंड, इसको कॉल कर लेते हैं. और इसको थोड़ा सा आदत डालिए. कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर without me. ठीक है. Now I'm passing 100. Now check the behavior. What happened? It's showing me error. ध्यान से पढ़ेंगे. कह रहे टेस्ट डॉट इनिट. टेस्ट डॉट इनिट का मतलब हो गया टेस्ट नाम की क्लास है और ये उसका क्या है, मेथड है ना. टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन. नहीं, टू तो हमने दिए ही नहीं. टू हमने दिया आर्ग्यूमेंट नहीं, हमने कितना दिया, एक. कह रहे कि टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन. कह रहे दो दे रहे हो तुम, वो तो एक ही है उसके पास. कैसे एक है? सेल्फ जो है ये डायरेक्टली कौन बिलोंग कर रहा है, इसको पीवीएम मैनेज कर रहा है. तो एक तो ये हिडन है ही है, और हमने एक और पास करके क्या कर दिया उसको, दो दे दिया. कह रहा है ये आप आप नहीं कर सकते इसके साथ कुछ भी, ये तो ऑलरेडी पीवीएम मैनेज कर ही रहा है. अब हमने कितने आर्ग्यूमेंट दे दिए, दो आर्ग्यूमेंट. हाँ, अगर यहां पर हम ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते तो इशू नहीं है. कितने आर्ग्यूमेंट हो गए, दो ही पास कर रहे हैं और दो ही हो गए. ये जो सेल्फ है ये कौन पास कर रहा है, इंटरनली पीवीएम पासिंग दिस इंटरनल. ठीक है, कोई डाउट नहीं, अभी कोई इशू नहीं है. Then internally if pvm passing this, okay, what is the value of self? इंटरनली यहां से जैसे ये होता है ना, यहाँ पे इंटरनली हिडन फॉर्म में हमें नहीं दिख रहा. जब ये कोड यहाँ से रन हो गया, मान लेते हैं ये कोड हमारा कंपाइल होकर पहुंच गया पीवीएम के पास, ये मान लेते हैं ये वाला कोड हमारा पीवीएम वाला. तो इसमें क्या चेंजेस होते होंगे, यहाँ पर इंटरनली कुछ वैल्यू यहाँ से पास होती होगी, कुछ सेल्फ को जा रही है. जब हमने 100 लिखा तो कितने आर्ग्यूमेंट हो गए, दो. और यहाँ पर हमारा कुछ ऐसे था, कह रहा है ये वाली वैल्यू तो इसको चली गई, पीवीएम ने दे दी, ये किसको दें, इसलिए क्या दिया उसने, एरर दे दिया. ठीक है भाई, ये वैल्यू इंटरनली चली गई. अभी इसको मैं एक बार प्रिंट कर देता हूं और हमें ये पता चल जाए कि सेल्फ के पास वैल्यू क्या है. ये कुछ वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट के पास, ये एड्रेस हो सकता है, कुछ आईडी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू है ऑब्जेक्ट के पास. तो ये पीवीएम दे रहा है. ठीक है, एक बार और रन करते हैं, देखते हैं वैल्यू हमेशा सेम आती है, अलग नहीं, अलग. लास्ट की सेम है लेकिन अलग. लास्ट में सेम आ रही है लेकिन बीच में वैल्यू लगा. ठीक है, तो डेफिनेटली हर बार पीवीएम ये वैल्यू पास कर रहा है सेल्फ को, है ना. तो इंटरनली ये वैल्यू, यानी कि जैसे ये होता है, लेट मी शो यू जस्ट. इंटरनली यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये वाली वैल्यू इस लोकेशन पे जाके पास होगी. तो हम यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं कर रहे हैं ना, तब भी पीवीएम ऐसे करके पास कर रहा है, और वो किसको मिल जा रही है, ठीक है, सेल्फ को मिल जा रही है. और यू नो ये जो वैल्यू है जो सेल्फ को मिल जा रही है, और इसके बाद हमने एक वैल्यू और डाल दी,
यार ये वैल्यू तो सेल्फ को दे दी पीवीएम ने, ये 100 किसको दूं? इसे क्या कह रहा है, वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज ऑलरेडी देयर एंड टू वैल्यूज पास। वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन आपने दो वैल्यू पास कर दी, दूसरी वैल्यू किसको दें? दैट्स व्हाई इट्स जनरेटिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू? लेट मी शो व्हाट इज दिस वैल्यू। आ रहा है कुछ? ये समझ में आ रहा है कुछ? ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है? सेम है। तो इंटरनली इस सेल्फ को क्या पास कर रहा है पीवीएम? इसका एड्रेस, इसका रेफरेंस किसको पास कर रहा है? सेल्फ। अब भी सेम रहेंगे। इसका रेफरेंस किसको पास हो रहा है? सेल्फ को। सेल्फ को कैसे पता चल रहा है कि यार मुझे इस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करना है? तो इंटरनली यहां पर इस टी का जो रेफरेंस है वो किसको पास हो रहा है? सेल्फ एज आर। तो इंटरनली इसमें क्या होता होगा हिडन फॉर्म में? ये स्टेटमेंट दिखाता हूं मैं आपको। इंटरनली ये ऐसे जा रहा है, टी का जो रेफरेंस है वो किसको मिल जाए? सेल्फ। बाकी हम जो आर्गुमेंट देंगे उसके लिए तो वेरिएबल देना ही पड़ेगा जब आर्ग्यूमेंट देंगे। तो इंटरनली कुछ ऐसे काम कर, ठीक है, ऐसे हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हिडन फॉर्म में है। जब हमारा कोड पीवीएम के पास पहुंच जाता है तो वो कुछ हो सकता है कुछ और तरीके से उसको पास कर रहा हो, लेकिन करिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए। जैसे सर प्रिंट में ये चीज़ प्रिंट नहीं हुई, लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूटेड वाली, मैंने जब टी पास वो किया इसलिए है। नहीं हुई ना, नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमने टी पास किया है। जब ये ऑब्जेक्ट बना तो ये इनिट फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने टी यहाँ प्रिंट कराया है, तो टी प्रिंट कराने से ये फंक्शन दोबारा कॉल थोड़ी ना होगा, ये एग्जीक्यूशन तो एक बार ही होगा ना। तो फिर भी हमें ये मेन तो दोबारा आ रहा है ना। नहीं नहीं, अभी अच्छा आप वो समझ, आईडी आईडी है। मैं तो आईडी सिर्फ प्रिंट कराया ना यहाँ पे, ठीक है। ये तो इस मेथड के अंदर है। ठीक है, हटा भी दूं तब भी मेरे को पढ़ा तो उससे क्या ही फर्क पड़ना। अभी अभी आईडी आ जाएगी, दोनों का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएंगे वैसे। ठीक है, दे ऑलवेज सेम। तो इंटरनली इसका जो एड्रेस है, इसको बेसिकली एड्रेस बोलते हैं अदर लैंग्वेज के हिसाब से। यहाँ पर हम इसका जो एड्रेस है वो किसको दिया जा रहा है? सेल्फ को। ठीक है, हम जैसे किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू पास करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पर एक एक मेथड है, इसको वैल्यू पास कर रहे हैं, एफ एम मेथड है यहाँ पर, आईडी नाम का मेथड है, तो हम कैसे पास करते हैं? एम जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देंगे, वो किसको मिल जाएगी? आईडी को। ऐसे अगर हम इसके अंदर टी पास कर दें तो इसका एड्रेस से किसको मिल जाएगा? सेल्फ। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। सेल्फ इज a default variable which is always pointing to current object। ठीक है, ये लाइन राइट हूँ, लाइक दिस कीवर्ड इन जावा। जावा के अंदर इस सेल्फ को हम क्या बोलते हैं? दिस कीवर्ड बोलते हैं। लेकिन जावा में जो दिस है वो कीवर्ड है, लेकिन सेल्फ इज नॉट द कीवर्ड। सेल्फ क्या है? कीवर्ड नहीं है, लेकिन जावा में जो दिस है वो कीवर्ड है। ठीक है, so by using cell we can access instance variable and instant method of the object, है ना, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस मेथड, और उसको क्या कर सकते हैं अपन? एक्सेस कर सकते हैं। सेल्फ शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। सेल्फ कैसा पैरामीटर होना चाहिए? फर्स्ट। ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस सेकंड। सेल्फ शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर इनसाइड द मेथड डेफ। यानी कि अगर हम कोई मेथड भी बना रहे हैं, हमने कोई, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे कोई एक और मेथड बना रहे हैं डेफ, लेट सपोज डेफ, यहाँ पर भी सेल्फ क्या होना चाहिए? फर्स्ट इंस्टांस होना चाहिए, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? Now, if self is not the keyword, if self is not the keyword, then
मैंडेटरी टू राइट सेल्फ ऑलवेज? सेल्फ की जगह एस नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। सेल्फ इज नॉट ए कीवर्ड। अच्छा। सेल्फ रिकमेंडेड है लिखना, बट मैंडेटरी नहीं। कोई भी नाम आप लिखो, वो किसको बिलोंग करेगा? वो इंटरनली ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आइदर आई एम राइटिंग एस, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मैं कुछ भी लिखूं, ऑलवेज पॉइंटिंग टू द current object. Like if I check, the address will be same. Still, if I do s dot name, ये भी s मतलब किसको बिलोंग कर रहा है? इंस्टांस को ही बिलोंग कर रहा है। So self is not a mandatory name because it's not the keyword, but Python community recommended to write self. Okay, Yes. कोई डाउट? ठीक है। So this is the complete picture about the self variable. Okay? But this is not the keyword, so we can use any word, but it is highly recommended by the Python community to use this word as a self. Okay? So this is all about the self variable. Tomorrow we discuss in depth about the And constructor constructors. concept. Means In it. init method. If you have any doubt, you can